لاہور کے ایک مصروف سڑک پر گاڑیوں کا شور، ہارنوں کی آوازیں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ ایک معمول بن چکی تھی۔ اسی شور کے دوران ایک 8 سالہ لڑکا سڑک کنارے بیٹھا ہاتھ میں خالی پیالہ لیے خاموشی سے راہگیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ماجد تھا۔ ننگے پاؤں، مٹی سے اٹے کپڑے اور چہرے پر بھوک کی لکیریں۔ وہ بچہ جس کی معصوم آنکھوں نے وقت سے پہلے دکھوں کا بوجھ دیکھ لیا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگتا، کبھی گاڑیوں کے شیشوں کے پار جھانکتا، جیسے تلاش کر رہا ہو کہ کہیں اس کا کوئی اپنا چہرہ نظر آ جائے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ اب اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ 3 سال پہلے اس کی دنیا مکمل تھی۔ والد سلیم جو ایک ایماندار مزدور تھے، ماں نصرت جو سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ سلیم کا ایک بڑا بھائی زریاب بھی تھا جو کبھی اس کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ دولت کی چمک کے پیچھے بھٹکتی رہتی تھیں۔ سلیم سادہ مزاج تھا، زریاب چلاک۔ وقت گزرا، زریاب ایک ٹھیکیدار کا اسسٹنٹ بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ پیسہ، تعلقات، شہر کی چوکا چوند نے اسے بدل دیا۔ وہ اپنے بھائی سے کترانے لگا۔ سلیم اکثر کہتا، زریاب، دولت انسان کو اونچا نہیں کرتی، دل اونچا رکھو، عزت خود بخود بڑھتی ہے۔ زریاب ہنستا، بھائی، عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، فقیر کی ایمانداری کون پوچھتا ہے۔ پھر ایک دن زریاب نے نوکری چھوڑ کر اپنا چھوٹا کاروبار شروع کیا، مگر سلیم نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ انکار کے پیچھے نیت نہیں، اصول تھے۔ اسے معلوم تھا کہ زریاب جو کام شروع کرنے جا رہا ہے وہ جائز نہیں۔ اسے ایک جھگڑے نے دونوں بھائیوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دی۔ زریاب نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، تم اپنی ایمانداری سنبھالو، میں اپنی قسمت بنا لوں گا۔ اور قسمت واقعہ ہی بدل گئی، مگر الگ الگ راستوں پر۔ وقت گزرا، زریاب ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، کروڑوں کا مالک۔ دوسری طرف سلیم اور نصرت زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، مگر دلوں میں محبت باقی رہی۔ ماجد تب 5 سال کا تھا۔ ایک رات سلیم اپنی بیوی نصرت کو اسپتال لے جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹرک نے دونوں کو رون ڈالا۔ ماجد کے نصیبوں کا سورج اسی رات غروب ہو گیا۔ پڑوسیوں نے 2 دن تک روٹی دی، تیسرے دن ترس ختم ہو گیا۔ اب وہی فٹ پاتھ اس کا گھر تھا۔ ایک دن جب وہ سڑک کنارے بیٹھا بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، سامنے سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی گزری۔ گاڑی سے اترا ایک شخص، سفید شلوار قمیض میں، ہاتھ میں فون، آنکھوں پر چشمہ۔ وہ غصے میں فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا معاہدہ آج ہی ختم کرو، مجھے بہانے نہیں چاہیے۔ ماجد نے غور سے اسے دیکھا۔ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، جیسے کہیں پہلے دیکھا ہو، مگر یاد کے دھندلے پردے کے پیچھے چہرہ گم ہو گیا۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی زریاب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ فون میں الجھا ہوا تھا، سڑک پر دھیان ہی نہیں۔ ماجد کے اندر کچھ ٹوٹا، جیسے دل نے یاد دلایا کہ ایک بار اسی طرح اس کے ماں باپ گئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری، صاحب گاڑی آ رہی ہے۔ زریاب نے نہ سنا۔ ماجد جو ساتھ ہی بیٹھا تھا دوڑ کر آگے بڑھا اور پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے گزری، زریاب زمین پر گر گیا، فون ٹوٹ گیا۔ چند سیکنڈ کا کھیل تھا، مگر زندگی اور موت کا فاصلہ انہی لمحوں میں طے ہوا۔ زریاب نے سنبھل کر دیکھا، ایک چھوٹا بچہ، پھٹے پرانے کپڑے، ننگے پاؤں ہانپتا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ زریاب آگے بڑھا، بیٹا تم نے میری جان بچائی۔ ماجد نے سر جھکا کر کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے بچے یتیم ہوں، جیسے میں ہوا تھا۔ زریاب کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ جملہ سیدھا اس کی روح میں اترا۔ اس نے پوچھا، تمہارے والدین کہاں ہیں بیٹا؟ ماجد نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ کے پاس۔ زریاب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ماضی کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ اس کے ذہن میں سلیم کا چہرہ ابھر آیا، وہی نرم لہجہ، وہی آنکھوں کی سچائی۔ زریاب نے ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ پوچھا، بیٹا تمہارے والد کا نام کیا تھا؟ ماجد نے کہا، سلیم احمد۔ یہ سنتے ہی زریاب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سلیم احمد؟ جی ہاں، میرے ابو مزدور تھے۔ زریاب کی سانس اٹک گئی۔ اور تمہارا نام؟ ماجد سلیم۔ زریاب چند لمحے تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ بیٹھ گیا، سارا ہاتھوں میں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماجد بیٹا، میں تیرا چچا ہوں۔ ماجد چونک گیا۔ کیا؟ زریاب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے کندھے تھامے۔ ہاں بیٹا، میں تیرا چچا زریاب۔ میں نے تیرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اپنے لالچ کے لیے۔ میں سمجھتا تھا دولت سب کچھ ہے، مگر میں غلط تھا۔ ماجد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ زریاب نے روتے ہوئے کہا، میں نے بھائی کا دل توڑا اور آج قسمت نے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ زریاب نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ماجد خاموش تھا مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے رکی، دروازہ کھلا اور رقیہ، زریاب کی بیوی، باہر آئی۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، رقیہ یہ میرا بھتیجا ہے، سلیم کا بیٹا ماجد۔ رقیہ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ سلیم تمہارا وہی بھائی؟
हाँ वही जिसने बरसों पहले छोड़ दिया था, और आज उसका बेटा मेरी जान बचा गया। रकुया ने आगे बढ़कर माजिद के सर पर हाथ रखा। बेटा अब तुम हमारे साथ रहोगे, ये घर तुम्हारा भी है। माजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों बाद किसी ने उसे बेटा कहा था, और यूं तकदीर का पहिया घूमने लगा। जिस शख्स ने दौलत के लिए अपने खून का रिश्ता छोड़ा था, वो अब अपने भाई के यतीम बेटे को गले लगा रहा था। लेकिन माजी का एक राज अभी बाकी था, वो राज जिसने सलीम की मौत का रास्ता बनाया था। रात ढल चुकी थी, मगर जरियाब के बंगल के अंदर खामोशी के बावजूद एक बारीक सा बोझ छाया हुआ था। जरियाब अपने कमरे में बैठा पुरानी यादों को बोझ तले दब गया था। सामने मेज पर सलीम की एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसे उसने बरसों बाद अपने सामान में तलाश किया था। वो तस्वीर देखकर जरियाब के आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार खुद से कह रहा था, भाई अगर मैं तुझे छोड़कर ना गया होता तो शायद तू आज जिंदा होता, शायद ये बच्चा सड़कों पर भीख ना मांग रहा होता। माजिद अपने कमरे में सो रहा था, मगर नींद में भी वो सहमा हुआ था। बरसों के वो खौफ और तन्हाई के जख्म एक रात में नहीं भर सकते थे। रुकैया दरवाजे पर आहिस्ता से आई, उसके पास बैठ गई, उसके सर पर हाथ रखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, खुदा ने हमें औलाद नहीं दी, मगर आज एक फरिश्ता भेज दी है। अगली सुबह जरियाब ने एक फैसला कर लिया। वो चाहता था कि अब अपने माजी की हर गलती का हिसाब खुद दे। वो शहर के पुराने इलाके की तरफ निकला, जहाँ कभी उसका और सलीम का किराए का घर हुआ करता था। अब वो जगह टूट फूट चुकी थी, दीवारों पर गर्द जमी थी। एक बूढ़ी औरत पास वाले घर से निकली। जरियाब ने पूछा, माँ जी यहाँ कभी सलीम मजदूर रहता था, आप जानती हैं उसे? औरत ने आह भरी, हाय सलीम बहुत नेक बनता था, मगर दुनिया ने उसे सुकून ना दिया। जरियाब के दिल में चुभन उठी। उसके साथ क्या हुआ था माँ जी? औरत ने आहिस्ता से कहा, हादसा तो हुआ जरूर, मगर लोग कहते हैं वो हादसा नहीं था, किसी ने उसके काम से जलकर उसकी मजदूरी छीनने की कोशिश की थी, और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। जरियाब के कदम लड़खड़ाए। उसने पूछा, किसने? कौन? औरत ने नजरें झुका ली। बेटा लोग कहते हैं सलीम का एक भाई था जरियाब, उसने ठेकेदार के साथ मिलकर उसे काम से हटाया था, और फिर उस रात सलीम गम में डूबा सड़क पर जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। जरियाब के लिए ज़मीन घूमने लगी, उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, जरियाब तूने मुझे छोड़ दिया, मगर किस्मत ने तुम्हें मेरी जगह पर ला खड़ा किया। जरियाब ज़मीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। आंसू थमे नहीं। वो जान चुका था कि सलीम की मौत के पीछे बराह रास्त उसका हाथ नहीं था, मगर उसका लालच, उसका गुरूर, उसकी बेहिसी बरा इनकार, वो असल जहर था जिसने बाई की रूह मार दी थी। वो खुद को मुजरम समझने लगा। वो वापस घर आया तो चुपचाप बैठा रहा। और रुकैया ने पूछा, क्या हुआ जरियाब? वो बोला, मैं मुजरिम हूँ रुकैया, अपने भाई का, अपने रूह का। मैंने दौलत के लिए सब कुछ खो दिया, और अब ये बच्चा मेरा कुफारा है। रुकैया ने आस्था से कहा, शायद खुदा ने तुम्हें मौका दिया है, तुम अपना हिसाब दुरुस्त कर लो। जरियाब ने सर उठाया, हाँ अब मैं वो सब कुछ उसी के नाम करूँगा जो मेरा है। ये मेरा नहीं, सलीम की इमानत है। अगले दिन उसने अपने वकील को बुलाया। वकील हैरान था जब जरियाब ने कहा, मैं अपनी सारी जायदाद, कारोबार और असासे अपने भतीजे माजिद सलीम के नाम मुंतकिल करना चाहता हूँ। वकील ने कहा, मगर जरियाब साहब ये तो अरबों का सरमाया है, क्या आपको यकीन है? जरियाब ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरे भाई का हिस्सा है जो मैंने छीना था। जब वकील चला गया तो जरियाब ने माजिद को बुलाया। बेटा मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ है, तुम समझोगे नहीं मगर सुनना जरूरी है। तुम्हारे अब्बू मेरे बड़े भाई थे, मैंने उनका दिल तोड़ा, उनसे मुंह मोड़ा, और इसी का नतीजा ये निकला कि तुम यतीम हो गए। माजिद की आंखें भीग गईं। चचा आप क्यों खुद को कसूरवार समझ रहे हैं? मेरे अब्बू की मौत एक हादसा थी। जरियाब ने आस्था कहा, नहीं बेटा वो हादसा नहीं था, वो मेरी लालच का नतीजा था। अगर मैं भाई के साथ रहता, अगर मैं उनके दुख मानता तो शायद वो जिंदा होते। माजिद खामोशी से आगे बढ़ा, जरियाब के घुटनों पर हाथ रखकर बोला, चचा अगर अब्बू होते तो वो आपको माफ़ कर देते, और मैं भी आपको माफ़ करता हूँ। आपने मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, अब मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। जरियाब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मैं खुद को नहीं माफ़ कर सकता, इसलिए आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। ये घर, ये दौलत, ये कारोबार, सब कुछ तुम्हारे नाम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस सब के साथ इंसाफ करो, लोगों का भला करो, और अपने बाप के उसूलों पर चल कर दिखाओ। माजिद ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ चचा, मैं वही बनूंगा जिसका ख्वाब अबू ने देखा था। जरियाब ने उसे सीने से लगा लिया। बरसों के बाद उसके दिल को सुकून मिला, मगर अभी वो सब कुछ होना बाकी था जो दोनों सोच भी नहीं सकते थे। वक्त गुजरता गया, माजिद की जिंदगी बदल गई। अब वो एक पढ़े लिखे नौजवान के रूप में जरियाब के कारोबार को संभालने लगा। उसकी ईमानदारी, नर्म मिजाजी, उसूल पसंदी ने कंपनी के सब मुलाजमीन का दिल जीत लिया था। जरियाब अक्सर उसे देखकर सोचता, यही तो मेरा भाई सलीम था।
सच्चाई का पैकर बस चेहरा बदल गया। रुकैया भी अब उसे अपने बेटे के बढ़कर चाहने लगी थी। लेकिन कुदरत का एक कानून है, जब सब कुछ ठीक लगने लगे तो आजमाइश जरूर आती है। ज़रियाब का एक पुराना पार्टनर शफीक, जो कभी ज़रियाब का हम सफ़र बाद में दुश्मन बन गया था, वापस लौट आया। उसने बरसों पहले ज़रियाब से कारोबार में झगड़ा किया था और बदनाम होकर मुल्क छोड़ गया था। अब जब उसने सुना कि ज़रियाब ने अपनी सारी जायदाद एक यतीम भतीजे के नाम कर दिया तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यही मौका है, अब मैं उस ज़रियाब को ख़त्म करके उसके कारोबार पर कब्जा कर लूँगा। उसने अंदर ही अंदर एक ख़तरनाक मनसूबा बनाया। वो एक दिन माजिद के दफ्तर आया, नरम लहजे में बोला, बेटा, तुम्हारे चचा के पुराने दोस्तों में मेरा भी नाम था, कभी भी मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके नक्शे कदम पर चलो। माजिद ने एहतराम से कहा, अंकल चचा अक्सर आपका जिक्र करते हैं, खुश आमदीद। आप जैसे तजर्बाकार शख्स की हमें रहनुमाई चाहिए। शफीक ने मक्कारी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, बस कुछ दस्तावेजात पर तुम्हें दस्तखत करने होंगे ताकि पुराने मनसूबे दोबारा शुरू किए जा सके। माजिद ने कुछ सोचे बगैर दस्तखत कर दिए, क्योंकि उसके दिल में साफ नीयत थी, मगर वो नहीं जानता था कि उन कागजात में चाल छुपी है। शफीक ने कारोबार की मलकियत के कुछ हिस्से अपने नाम मुंतकिल कर दिए थे। चंद दिन बाद ज़रियाब के सामने खबर आई कि कंपनी के हिस्से में अचानक तब्दीली हो गई है। उसने वकील को बुलाया। वकील ने बताया, ज़रियाब साहब, ये दस्तखत माजिद के हैं। कानूनी तौर पर अब शफीक आपके कारोबार में बड़ा हिस्सेदार बन गया है। ज़रियाब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो माजिद के कमरे में गया, गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, माजिद, क्या तुमने किसी कागज़ पर दस्तखत किए थे? माजिद सादा दिल थे, बोला, जी चचा, शफीक अंकल ने कहा था ये पुराने मनसूबों के लिए हैं। ज़रियाब के लब कँप गए। बेटा, वही शफीक जिसने कभी मेरा सरमाया हड़प किया था, वही तुम्हें धोखा देगा। माजिद पर जैसे बिजली गिरी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वैसा कर सकता है। चचा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़रियाब ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी नीयत साफ थी, कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे वो दुनिया दिखाई जो धोखे से भरी है। अब ये वक्त है तुम खुद अपने चचा की गलतियों को दुरुस्त करो। माजिद ने अज़म से सर उठाया। मैं वादा करता हूँ चचा, इस बार कोई भी हमारी मेहनत नहीं लूटेगा। अगले दिन ही माजिद ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, शफीक के जामा दस्तखतों की फाइलें तलाश की और एक दिन पुलिस के साथ शफीक के दफ्तर पहुंच गया। शफीक हैरान रह गया। बेटा, तुम समझते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? माजिद ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं अंकल, आप मेरे बाप के भाई के दुश्मन हैं। आप ये लड़ाई उसूलों क्या? शफीक के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में तमाम सबूत पेश किए गए और आखिरकार फैसला माजिद के हक में आया। अदालत ने शफीक के तमाम जायदाद जब्त करके ज़रियाब के नाम वापस कर दी। ज़रियाब के आंसू निकल आए। वो बोले, बेटा, आज तुमने ना सिर्फ मेरा हक लुटाया बल्कि मेरे दिल का बोझ भी उतार दिया। तुमने सलीम के बेटे होने का हक अदा किया। माजिद ने आस्था से कहा, चचा जी, सब आपकी तरबियत का नतीजा। अगर आपने मुझे अपने साथ न रखा होता तो शायद मैं भी सड़कों पर ही रह जाता। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, दौलत कभी तुम्हारे दिल पर हुकूमत ना करे। ईमानदारी वो विरसा है जो तुम्हें तुम्हारे बाप से मिला है, उसे कभी न खोना। चंद दिन बाद ज़रियाब की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर लेटा माजिद का हाथ पकड़े बोला, बेटा, मैंने जो कुछ भी पाया वो तो इससे पाया। अब अगर मैं चला भी गया तो मुतमिन हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सलीम की रूह अब सुकून में है। माजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। चचा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़रियाब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं हमेशा तेरे अंदर जिंदा रहूंगा। हर उस फैसले में जो तुम सच्चाई के लिए करोगे। वो रात खामोशी से गुजरी, मगर फजर के वक्त ज़रियाब ने आखिरी सांस ली। रुकैया और माजिद दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद दिन बाद माजिद ने कंपनी के दफ्तर में सब मुलाजमीन के सामने एक बात कही, ये कारोबार अब मेरे नाम ज़रूर है, मगर इसका हर हिस्सा मेरे चचा ज़रियाब और मेरे बाप सलीम की अमानत है। मैं इसे उनके असूलों पर चलाऊंगा और हमेशा याद रखूंगा, इंसान को अमीर उसकी दौलत बनाती है, ना कि उसकी जेब की। इस लम्हे सबके चेहरों पर एहतराम झलकने लगा।